Hello. In this video, let us discuss a very good question based on reasoning based DI. Question is, each person living in a certain city speaks exactly one language among six different languages, and the languages are English, Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu, and Marathi. The first pie chart below gives the number of persons in the city who speak each language at the beginning of 2010. The second pie chart gives the exact percentage breakup of the number of persons who speak each language at the beginning of 2015. It is known that between 2010 and 2015, no person learned to speak another language and there were no births or deaths in the city. However, some persons in the city might have moved out of the city and some persons from outside the city might have moved into the city. Every person who moved into the city speaks exactly one of the six languages. तो इस तरह से हमको एक क्वेश्चन गिवन है, हमको 2010 का डेटा गिवन है जिसमें हमको नंबर ऑफ पीपल दे रखा है who can speak a particular language. For example, there are 1500 people who can speak English, 3500 who can speak Hindi, 2000 Malayalam and so on. And in the second pie chart we have data of year 2015 जहां पर हमें number of people की जगह percentage में data दे रखा है. And there are certain conditions. First condition is that जो भी पर्सन यहाँ पे 1500 इंग्लिश के हैं वो अपना लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स वो कोई नई लैंग्वेज में नहीं जा सकते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर कंडीशंस आर, कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि पर्टिकुलर सिटी छोड़कर गए हों और हो सकता है कुछ लोग इस सिटी छोड़कर दूसरी सिटी से इस सिटी में आए हों. क्या नंबर है वो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उस पे बेस कैसे सॉल्यूशन आएगा वो देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the number of persons who speak Hindi remain the same during the given period, what is the minimum number of persons who could have moved out of the city? तो इन्होंने एक हिंट दे रखा है यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी रिमेन द सेम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस calculate the total number of persons in year 2010 in that particular city. So in English we have 1500 people. In Hindi the number of people is 3500. Malayalam we have 2000. Then Tamil we have 2500. Then Telugu we have 3000. And in Marathi we have 2000. So if we calculate the total, that comes out to be 14,500. This is the total number of persons in the year 2010, right? अब 2015 में हमें total number of persons नहीं दे रखा है, तो let it be X, fine. And one condition is given to us that the total number of people speaking Hindi remain unchanged. So can we say that in 2015 how many people are there who can speak Hindi? We have 20% of X. टोटल पॉपुलेशन इज एक्स और उसमें से 20% हिंदी बोल सकते हैं, राइट. तो द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इज 20% ऑफ हु कैन स्पीक हिंदी इज 20% ऑफ एक्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 3500 क्योंकि ये नंबर आपको सेम दे रखा है इन ईयर 2010 एंड 2015. So if we calculate x from here, it comes out to be 17,500. So now we know that the total number of people in 2015 is 17,500. Now let us calculate it language wise. So in English we have 25% of this value. So 25% of 17,500 will be 4375. This is the figure for 2015. Fine. For Hindi the number is same, that is 3500. For Malayalam we have 15%, and if we calculate 15% of 17,500 it will come out to be 2625. 10% is 1750. In Telugu also we have 10% only, that is 1750 again. And in Marathi we have 20%, that is 3500. Now see, we need to minimize the number of people who moved out of the city. जो city से बाहर गए हैं उनको minimize करना है. तो देखिए इंग्लिश में ये नंबर इंक्रीज हुआ है. So from 1500 we have reached till 4375. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मूव आउट कितना हुआ है, जीरो. कोई भी बाहर नहीं गया, जबकि जो रिमेनिंग जो इतना डिफरेंस है वो सारे वो पीपल हैं जो सिटी में आए हैं. तो एक्चुअली वी नीड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पर्संस हु मूव आउट ऑफ द सिटी. तो यहाँ पर तो वी कैन अज्यूम इट टू बी जीरो, राइट. यहाँ पर सेम नंबर है, कितना आउट गए होंगे, जीरो. Earlier it was 2000 for Malayalam, now it is 2625. तो ये इंक्रीज ही हुआ है.
तो बाहर जाने वाला कितना हम अज्यूम कर सकते हैं, मिनिमम नंबर 0, राइट। 2500 से 1750 हो गया। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, और कितने लोगों का डिक्रीमेंट हुआ है, इट इज ऑफ 750 पर्सन। एंड सेम विद द केस इज द केस विद तेलुगु एज वेल, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट है, और डिक्रीमेंट कितने का है, 3000 माइनस 1750, दैट इज 1250। फाइन। मराठी में वी हैव इंक्रीमेंट ऑफ 1500, तो डिक्रीमेंट आउट कितना होगा, 0। तो यदि हम नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर मूविंग आउट उसको मिनिमाइज करना चाहें, तो दैट विल बी 750 plus 1250, that is total 3000, in fact sorry 2000. So 2000 is the number of people, minimum number of people in fact who moved out of the city. Now let us move to next question. If no person moved out of the city between 2010 and 2015, so now the person moving out of the city is 0. So moving out is equal to 0. What is the minimum number of people who speak Malayalam that must have moved into the city? So into में कितने आए हैं सिटी में, उसको मिनिमाइज करना है, कितने कम से कम लोग सिटी में आए होंगे। Now first of all let us focus on the data given to us. जो डेटा में गिवन है, इंग्लिश में earlier we had 1500 people, right, and in Hindi we have 3500 and so on. Malayalam में we have 2000, Tamil में we have 2500 and Telugu में we have 3000 and in Marathi we have 2000. Now see, let us assume again the total number of people to be x over here. Total x है. English में कितने हैं, 25% of x. हिंदी में we have 20% of x. Malayalam 15% of x and so on. Now see, कोई भी लोग बाहर नहीं गए हैं सिटी से, कोई भी लोग बाहर नहीं गए हैं, इनफैक्ट कुछ लोग आए ही होंगे सिटी से, तो कैन वी अज्यूम इट दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14,500। 14,500 क्या है, 2010 का टोटल पॉपुलेशन। अब ऑब्वियसली कोई बाहर नहीं गए हैं, यदि लोग आए हैं या नहीं भी आते तो भी ये 14,500 तो रहेगा ही रहेगा, और कुछ लोग आ जाते हैं तो ये नंबर इंक्रीज ही होने वाला है, 14,500 से कम तो नहीं रहने वाला, राइट। अब हम यदि यही सेम कंडीशन इंडिविजुअली अप्लाई करें फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में 1500 पहले थे, अभी 25% ऑफ एक्स है, तो जो इंग्लिश में लोग हैं क्योंकि कोई भी लोग बाहर नहीं गए, तो कैन वी से दैट दिस 25% ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500। कम तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग वाले कोई भी लोग बाहर नहीं गए हैं। In Hindi, again, this 3500 must be less than or equal to 20% of x. जो ये 20% of x है, ये इस वैल्यू के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, इससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी लोग छोड़कर नहीं गए हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट। मलयालम में जो 15% है अब, वो 2000 से कम नहीं हो सकता है, so this 15% of x must be greater than equal to 2000. Similarly, for all others, we can write 10% of x for Tamil must be greater than equal to 2500, and for Telugu again 10% of x must be greater than equal to 3000, and for Marathi it is 20% of x which must be greater than equal to 2000. So if we talk about the condition on x, so x must be greater than equal to, यहाँ से हम यदि कैलकुलेट करें तो ये आता है 6000, x must be greater than equal to 6000। इंग्लिश वाली कंडीशन से हमने कैलकुलेट किया है, हिंदी वाली कंडीशन से हम कैलकुलेट करते हैं तो x must be greater than equal to 17,500। If we calculate the value of x, in fact the range of x from this Malayalam, so 2000 must be less than equal to 15% of x। यहाँ से x कैलकुलेट करने पे आएगा 13,333.33। फाइन। नेक्स्ट वैल्यू जो हम तमिल से यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x comes out to be greater than or equal to 25,000। From Telugu x comes out to be greater than equal to 30,000, and from last that is Marathi x comes out to be greater than equal to 10,000। Now these are the different ranges of x you can say जो हमको मिल रही है, conditions on x you can say, right। x must be greater than 6,000, it must be greater than 70,500 also, it must be greater than 25,000 also, and so on। Now suppose if I take the value of x is 77,000, so that will satisfy the first condition, और बाकी सारी conditions गलत हो जाएंगी। If I assume the value of x to be, let's assume 15,000, तो फर्स्ट सही हो जाएगी कंडीशन, ये एक सही हो जाएगी कंडीशन, और ये सही हो जाएगी, बट बाकी तीन कंडीशन गलत हो जाएंगी। तो जो मिनिमम वैल्यू हम x की ले सकते हैं
जिससे सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, दैट इज 30,000। जैसे ही मैं x की वैल्यू 30,000 लेता हूं या उससे कोई बड़ी वैल्यू अज्यूम करते हैं, तो ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, राइट। तो जो मिनिमम वैल्यू x की हो सकती है दैट इज 30,000। फाइन। अर्लियर द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वाज 14,500। नाउ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट वी कैन हैव इज 30,000। एंड ऑब्वियसली हमसे यहाँ पे मिनिमम ही पूछा है। Now, what is the minimum number of people who speak Malayalam that must have moved into the city? Now, the total number of people who speaking Malayalam over here is 15% of 30,000. और पहले ये वैल्यू कितना था? It was 2,000. Now, this if we calculate it comes out to be 4,500. So, जो minimum number of people हैं जो कि मलयालम बोलते हैं और सिटी में आए होंगे, that comes out to be 2,500, which is the correct answer for this question. Fine. Now, next question. If no person moved out of the city, सेम कंडीशन जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन में हमें दे रखी थी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव मूव्ड इनटू द सिटी। नाउ सी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, मैं आपको एक बार वापस शो करता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था x की जो मिनिमम वैल्यू है दैट कैन बी 30,000, उससे बड़ा ही होना चाहिए x, उससे कम होते ही इन कंडीशंस में से कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, राइट। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ x दैट वी हैव ओवर हियर इज x minimum is 30,000। और हमसे यही पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव मूव्ड इनटू द सिटी, राइट। तो अर्लियर इट वाज 14,500। तो जो मिनिमम पर्सन है जो सिटी में आए होंगे, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीस टू वैल्यू, दैट इज 15,500, व्हिच इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ सी, वी कैन अज्यूम द वैल्यू टू बी, we have the condition that x must be greater than equal to 30,000, so we can assume the value of x to be 40,000 also, no issues with that, right? But that will not give us the minimum number of persons moved into the city। हमें इसको मिनिमाइज करना है तो हमें x की वैल्यू भी मिनिमम लेनी पड़ेगी, and the minimum value of x that we can have is 30,000। so minimum number of persons that must have moved into the city is coming out to be 15,500, which is the answer to this question। now moving to last question of this set, if no person moved into the city। now पहले वाले जो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ये था कि कोई भी पर्सन सिटी के बाहर नहीं गए हैं। नाउ कोई भी सिटी के अंदर नहीं आया, इन मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव मूव आउट ऑफ द सिटी। अब हमें आउट वाली वैल्यू को मिनिमाइज करना है। नाउ अगेन द सेम प्रोसीजर, लेट अस अज्यूम द टोटल नंबर ऑफ पीपल टू बी x, राइट। अब क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले पहले 1500 थे और अभी कोई भी अंदर नहीं आया है सिटी के, कुछ लोग गए ही होंगे, तो दिस 25% ऑफ x मस्ट नाउ बी लेस देन इक्वल टू 1500। जहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, नाउ इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू। क्यों लेस देन इक्वल टू? क्योंकि देखिए कोई भी अंदर नहीं आया है, तो जो इंग्लिश बोलने वाले हैं या तो वो सेम हो सकते हैं या उनमें से कुछ चले गए होंगे, तो वो वैल्यू कम ही होगी, वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती 1500 से। सिमिलरली फॉर हिंदी वी हैव 20% ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3500। जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ग्रेटर देन की कंडीशन ली थी वो सारी अब लेस देन की होने वाली है यहाँ पर। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मलयालम में 15% ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू हाउ मच, 2000 एंड सो ऑन। तो जहां पर हमको प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यूज मिल रही थी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 6000, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिलेंगी x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6000, फर्स्ट कंडीशन। ये वैल्यूज सेम रहने वाली है, बस साइन को हमें चेंज करना है। देखिए मैं एक बार प्रीवियस क्वेश्चन शो करता हूँ आपको। यहाँ पर जो भी ग्रेटर देन के साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, उन सारे साइन को हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पर आउट 0 था, यहाँ पर इन 0। फाइन। तो यदि हम सारी कंडीशंस वापस लिखें तो x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 17,500, x must be less than equal to 13,333.33, x must be less than equal to 25,000, it must be less than equal to 30,000, and last it must be less than equal to 10,000। now obviously if in case I take the value of x to be 25,000, तो मेरी ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, ये सही रहेगी, ये सही रहेगी और ये रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है x की जिससे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x दैट वी कैन अज्यूम इज 6000। 6000 के ऊपर लेते ही
this particular condition will become wrong. ये wrong हो जाएगी, right? तो जो maximum value है x की वो हम कितनी ले सकते हैं 6000. Now what is the minimum number of people that must have moved out of the city? Now this is the maximum value. Earlier the number of people in city was 14,500 in 2010. अब x ज्यादा से ज्यादा it can be 6,000. So the minimum number of people that must have moved out of the city is coming out to be 8,500. Fine. So this was a good question. So I hope this question is clear to you. Thank you.